Welcome back to the Reldrick Geo channel, everybody. Today we're going to be reacting to another video. This one a little bit different compared to some of the videos that I reacted to in the past. Typically I react to geography, history-related things. I mean, I guess you could say this is somewhat history in the making, right? So I have come to find out that there is a lot of bad blood brewing between Canada and India. Um, and I've seen some of the things that have been going on. Apparently, it's something to do with Trudeau being backed by like separatists, and he seems to be okay with it. And they wanna make a like Sikh nation and separate a part of India. So it's really weird, right? Like that's like another world leader saying to Canada, "Hey, why doesn't Quebec become its own country?" It's a little odd. It's a little weird, but I don't really know the backstory. I asked in my Discord if anybody could give me a link to some more information or if they could explain a little bit more, and they did explain some things, and they also linked this video in particular. So I think we're going to go ahead and react to this video. We're going to watch it. We're going to commentate. I will be pausing and talking throughout the video. But hopefully at the end of it all, I get a better understanding of what exactly is going on, and specifically from, I guess, a Indian point of view, since it does all kind of relate to India. So yeah, this video is called "Why India and Canada Are Fighting Hardeep Singh Nijjar." I think this is like a person that was killed, I think. So yeah, this video is about 7 months old. It's going on, even like stuff happened very recently, even around the time of recording of this video. So hopefully I can get a decent understanding. So let's go ahead, without any further ado, watch the video. ये जो डॉक्यूमेंट आप मेरे साइड में देख रहे हो, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया था जुलाई 2020 में, और ये उस आदमी के बारे में है जिसको कनाडा एक एक्टिविस्ट और सिटीजन बुला रहा है। And the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये डॉक्यूमेंट कहता है कि हरदीप सिंह निज्जर, जिसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1977 को और निवासी है जलंधर के गांव भाड़ सिंहपुरा का, वो चीफ है खालिस्तान टाइगर फोर्स का। और The Palestine, yes, that's the separatist movement. He's the chief of the Palestine Tiger Force. वो उसके मेंबर्स के ऑपरेशन, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग में भी इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि हरदीप सिंह निज्जर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। वही हरदीप सिंह निज्जर जिसकी मौत की वजह से इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलमोस्ट रॉक बॉटम पर है। हरदीप सिंह निज्जर इस एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। I've seen. Have I seen this? Yeah, I feel like I've seen. Wait, what is going on here? Okay, so this is the Palestine stuff. Maybe I didn't see this. This looks like something I play a lot of GeoGuessr, right? Specifically in India. This looks like something I mean, it's very familiar, but again, I'm when it comes to a lot of things, I don't really know too much. So, yeah. Okay. एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अक्यूज किया इंडियन गवर्नमेंट को एक कनेडियन सिटीजन की मौत के लिए। हरदीप सिंह निज्जर 18 Oh, okay, so Trudeau accuses India in killing Hardeep Singh Nijjar. Okay. जून को हरदीप को मारा गया कनाडा के सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर। मरने से कुछ घंटे ही पहले हरदीप ने So that was actually in Canada. Okay. एक इंटरव्यू में कहा कि असैसिनेशन की पॉसिबिलिटी है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਪਾਇਆ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ। कनेडियन सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज किया फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के लिए और कहा कि ये कनाडा की सोवरेनिटी के खिलाफ है। If these allegations are true, they represent an outrageous affront
to Canada's sovereignty. कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पिछले हफ्ते G20 के दौरान उन्होंने पर्सनली और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस इंसिडेंट के बारे में क्लियरली समझाया। इसके बाद Okay, that not to take away from it, but this looks like green screen. Is this green screen? This 100% just straight up just looks like a green screen or like an image of some sort, right? Like it doesn't pop well. But okay, so he actually directly talked to him. See, I didn't know this. I don't know if that's just because I wasn't looking into foreign affairs in and around Canada or India at the time, or if it's just something that flew under the radar. Or I guess if it was 2020, dude, with just the US, you know, there's so much going on. But yeah, I mean, yeah, 2020. Right, that would have been, you know, the presidential election here in the US and COVID and all sorts of stuff. डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस इंसिडेंट के बारे में क्लियरली समझाया, जिसके बाद कनेडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने इंडियन इंटेलिजेंस के कनेडियन हेड को एक्सपेल कर दिया। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. Wow. फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलेनी जॉली ने बताया कि वो डिप्लोमेट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे कनाडा में। It is the head of RAW in Canada. कांग्रेस लीडर मनविंदर सिंह ने लेकिन कहा कि कनाडा का इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल का नाम बताना कन्वेंशन के खिलाफ था। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये एलिगेशंस अब्सर्ड और मोटिवेटेड है। आपने हरदीप का नाम शायद अब सुना होगा, पर उसकी एक्टिविटीज 2007 से स्टार्ट हो गई थी। उसके मारे जाने के पीछे भी दो थ्योरीज है। एक है कि इंडियन सरकार ने उसको मारा और दूसरी थ्योरी है गैंग वॉर। फिर इंडियन Gang war, probably a gang war, right? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनेडियन हाई कमिश्नर को समन किया और कहा कि कनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस के स्टेशन हेड ओलिविया सिल्वेस्टर को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ना होगा। The concerned diplomat has been asked to leave India within the next 5 days. कनेडियन हाई कमिश्नर बहुत खुश नहीं दिखे इस मीटिंग के बाद। इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस वैसे ही अच्छे नहीं थे और वो अब और बिगड़ गए। जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच, उस पर भी पॉज लगा दिया गया। कोसेंटिनो ने बताया है कि फिलहाल हम भारत के साथ आगामी ट्रेड मिशन को स्थगित कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपके लिए 3 चीजें जानना जरूरी है। हरदीप सिंह निज्जर है कौन? कनाडा में सिख्स की पॉपुलेशन 2% है, तो जस्टिन ट्रूडो ने इतना अग्रेसिव स्टांस क्यों अपनाया है? और तीसरा कि क्या इंडिया ने ही हरदीप को मारा है? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बने रहिए। Wow. Okay, so I did not realize it was हरदीप सिंह निज्जर है कौन? that much of a like they paused their free trade agreement. I missed this entirely. Wow. How did I just not I just didn't know. हरदीप सिंह निज्जर हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन है? जिस तरह हरदीप सिंह निज्जर एक कनेडियन सिटीजन बना, वो भी एक पहेली है, क्योंकि उसकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं आपको कहानी बताता हूँ। हरदीप सिंह निज्जर जलंधर के एक छोटे से गांव से हैं। 10 फरवरी 1997 को हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में घुसता है एक फेक पासपोर्ट के साथ। He entered Canada with a fake. He was an illegal. का नाम था रवि शर्मा। कनाडा आते ही वो रेफ्यूजी स्टेटस की मांग करता है, क्योंकि वो कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोसिक्यूट करना चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसे सोशल ग्रुप से है जो सिख मिलिटेंट से एसोसिएटेड है। वो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को बताता है कि उसकी दिक्कतें स्टार्ट हुई थी 1990 को, जब पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया था। Whoa. Wait, what? आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि 1980s के दौरान पंजाब में वायलेंस बढ़ गया था जरनैल सिंह भिंडरावाले की वजह से। 1984 में भिंडरावाले के सपोर्टर्स ने हथियार ले लिए थे और पुलिस के साथ वो क्लैश कर गए थे, जबकि भिंडरावाले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुप गया। इस चीज पर मैंने कुछ महीने What is that? I made a detailed video on this a few months ago. I'm gonna have to see this as well, because I didn't know anything about that. Okay. पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं उसको। can watch it after this video. I के will. ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से भिंडरावाले और उसके कई सपोर्टर्स मारे गए और इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर कंट्रोल ले लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट किया और ठीक अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। और एंटी सिख राइट्स हुई हमारे देश में, जहां 8000 से ज्यादा सिख लोग मारे गए। Wow. What? इस मिलिटेंसी के चलते कई नौजवान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने लग गए और इसके खिलाफ ही
इंडियन सरकार ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया। इसी क्रैकडाउन से बचने के लिए हरदीप कनाडा भागा एक फेक पासपोर्ट के साथ। हरदीप ने कनेडियन अथॉरिटीज को बताया कि इस क्रैकडाउन में इंडियन पुलिस ने उसके पिताजी और भाई को कई बार अरेस्ट किया। उसने कहा कि 1995 में पुलिस उसके पीछे भी आई ये जानने के लिए कि उसके पिताजी और भाई कहाँ हैं। पर जब उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसने बोला कि इंडियन पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, उसके हाथ पीछे बांध कर और उसके प्राइवेट पार्ट्स को इलेक्ट्रोक्यूट करके। उसने कहा कि उसको धमकी That's intense. दी गई उसकी जान के लिए, जिसके बाद उसने 50,000 रुपए की घूस दी भागने के लिए। उसने अपने बाल काटे अपीयरेंस चेंज करने के लिए और अपने रिश्तेदार के घर में छुप गया। इसीलिए वो कनाडा में आया एक फेक पासपोर्ट के साथ रेफ्यूजी स्टेटस की डिमांड करने के लिए। पर कनेडियन रेफ्यूजी ऑफिशियल्स ने इसकी ये कहानी मानी नहीं, क्योंकि अपनी कहानी के एविडेंस के लिए हरदीप ने एक लेटर सबमिट किया था। ये लेटर था उस इंडियन फिजिशियन का जिसने रिपोर्टेडली हरदीप को ट्रीट किया था पुलिस के इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद। पर इस लेटर में कई प्रॉब्लम्स थी। फिजिशियन ने बॉडी पार्ट्स की कई स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी और जो कहानी बताई गई थी कनेडियन अथॉरिटीज उस पर इतना विश्वास नहीं कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर। I mean, if you're faking a passport, you could fake, physician letter as well. Yeah. किसी न किसी तरह कनाडा में रहना चाहता था। इसीलिए 11 दिन बाद उसने एक कनेडियन महिला से शादी करी। Wait, what? He couldn't get refugee status, so he married into the country? कि उसको एक स्पाउसल वीजा मिल जाए कनाडा का। एविडेंस के तौर पे उसने कनेडियन अथॉरिटीज को वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग की फोटोज और कपल की फोटोज भी दिखाई। पर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये शादी भी वीजा के लिए ही हुई है। इसी वजह से उन्होंने ये भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि उसकी जो बीवी है वो कनाडा में 1997 में आई थी, जिसका स्पॉन्सर कोई और हस्बैंड था। हरदीप ने इस डिसीजन के खिलाफ अपील करी, पर 2001 में वो कोर्ट की रूलिंग हार गया। पर बाद में वो सिटीजन बन गया। कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन ने पहले कहा कि वो सिटीजन बना 2015 में और फिर कुछ समय बाद कहा कि वो सिटीजन बना था 2007 में। अब उसको सिटीजनशिप कैसे मिली? hold on. Why was he allowed to stay? That's my first question. If they rejected him twice, why was he allowed to stay? ये क्लियर नहीं है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने इस बात पर डिक्लाइन करने से मना कर दिया प्राइवेसी लेजिस्लेशन की वजह से। अब इतने सारे खालिस्तानीज कनाडा कैसे पहुंचे ये भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। अभी हरदीप की कहानी से जुड़े रहते हैं। सरे में हरदीप का एक छोटा सा प्लम्बिंग का बिजनेस था और उसके 2 बच्चे भी थे। वो कनाडा में प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ जब उसने बाबर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन किया, जिसको बनाया गया था 1981 में तलविंदर सिंह परमार की लीडरशिप के अंडर। BKI सबसे पुराने खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स में से एक है। कनाडा ने खुद बाबर खालसा इंटरनेशनल को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया अपनी वेबसाइट पर। कनाडा ने लिखा है कि BKI एक टेररिस्ट एंटिटी है जिसका मकसद है खालिस्तान बनाना। इसकी So even Canada has claimed this as a terrorist organization, and this was in 2003, by the way, right here. But Trudeau, not a week ago, was out there with a bunch of Palestinians, giving him his support. एक्टिविटीज में आर्म्ड अटैक्स, असैसिनेशंस और बॉम्बिंग शामिल है और इसके मेंबर्स पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और स्कैंडिनेविया में है। 1980s के दौरान इस ग्रुप ने कई टेररिस्ट अटैक करे, जिसमें से सबसे भयंकर अटैक था 1985 में। जून 1985 में एयर इंडिया टोरंटो से मुंबई जा रही थी। टोरंटो से उसको मॉन्ट्रियल जाना था, मॉन्ट्रियल से लंदन और फिर मुंबई, पर प्लेन कभी मुंबई पहुंचा ही नहीं। आयरलैंड के कोस्ट के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 329 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए। इसको बुलाया गया फेमस एयर इंडिया कनिष्का 1985 बॉम्ब। I have heard of this one. पहले ही 1984 में तलविंदर सिंह परमार ने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि इंडियन प्लेन्स आसमान से गिरेंगे और यही उसका प्लान था। जिस समय कनिष्का बॉम्बिंग हुई उसी समय जापान में भी एक बॉम्ब फटा। ये हुआ टोक्यो एयरपोर्ट में और निशाना था एक और एयर इंडिया फ्लाइट पर। बॉम्ब समय से पहले फट गया, इस वजह से पैसेंजर्स नहीं मरे पर 2 बैगेज हैंडलर्स की मौत हुई। तलविंदर हमारी कहानी में वापस आएगा तो इसको याद रखना। पर 1990s के दौरान BKI का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होते गया क्योंकि कई सीनियर लीडर्स की हत्या हुई थी। इस समय BKI को ज्वाइन करने के बाद
हरदीप का नाम पहली बार पब्लिक में आया 2007 के लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट केस में। लुधियाना में एक सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटर है जिसका नाम है श्रृंगार सिनेमा। 14 अक्टूबर 2007 को ये सिनेमा एक भोजपुरी फिल्म जरम जरम के साथ चला रहा था। उस दिन थी ईद, इसी वजह से थिएटर पूरा पैक था। पर जैसे ही लोग इंटरमिशन के बाद थिएटर में वापस आ रहे थे, एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ। इसमें 6 लोगों की जानें गई और करीब 40 लोग घायल हुए। पुलिस ने कहा कि ये बॉम्ब रखा गया था 3rd रो पर और मोस्ट लोग जो मरे वो बेचारे माइग्रेंट लेबरर्स से उत्तर प्रदेश से। सीनियर पुलिस ऑफिसर जगदीश मित्तल ने कहा कि इसमें मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स के साथ मिलकर ये बॉम्ब किया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने बाबर खालसा इंटरनेशनल के 4 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया है। 4 persons, including the alleged mastermind Gurpreet Singh, have been arrested. Police claim they belong to the terror outfit Babar Khalsa International. उन मिलिटेंट से 5 किलो का RDX, 3 डेटोनेटर और 2 पिस्टल्स मिली। पुलिस ने कहा कि ये सारे लोग पाकिस्तान तक गए थे बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए। After training in Pakistan, they came back to India and they started motivating youth and their friends for terrorist activities. पर 7 साल बाद लुधियाना कोर्ट ने 3 अक्यूज को अक्विट कर दिया, ये कहकर कि इन्वेस्टिगेशन में लैक ऑफ एविडेंस है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। चौथे अक्यूज की तो जेल में ही मौत हो गई थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर का भी इस केस में हाथ था, पर अभी तो कारनामे स्टार्ट हुए थे। 28 April 2000। So they had direct ties to this guy being in this terrorist organization and even potentially linked to a bombing. Okay. पटियाला के सत्यनारायण मंदिर के पास आर्य समाज एरिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जहां 9 लोग घायल हुए, इंक्लूडिंग द पुलिस कर्मी। और इस केस में एक अक्यूज था हरदीप सिंह निज्जर। 7 साल बाद वही चीज हुई। कोर्ट ने सबको बरी कर दिया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रूव नहीं कर पाई थी कुछ। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर को बोला कि वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को कंट्रोल करें कनाडा में, इंक्लूडिंग हरदीप के बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप को। 2011 में हरदीप ने एक नया ग्रुप ज्वाइन किया, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो एक ऑफशूट था बाबर खालसा इंटरनेशनल का। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने Okay, I just want to say they call it the Khalistan Tiger Force, but this is clearly an image of a lion. I mean, if you're gonna make your you know, if you're gonna put a name of an animal in your you know, in your logo, at least match the animal correct, right? Because this is I mean, that's a lion. बाबर खालसा इंटरनेशनल का। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया अपनी वेबसाइट पर। खालिस्तान टाइगर फोर्स का फाउंडर था जगतार सिंह तारा, जिसको कॉन्विक्ट किया गया था पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह के मर्डर में। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे और खालिस्तान टाइगर फोर्स के खूंखार आतंकी जगतार सिंह और तारा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला केस एजेंसीज को मिलता है अक्टूबर 2011 में, जब अंबाला में एक खाली गाड़ी में कई एक्सप्लोसिव्स बरामद होते हैं। Police traced a blue color Indica car outside Ambala Cant railway station and recovered 5 detonators, 2 time devices, 5 kilograms of explosives and 2 batteries. KTF इस चीज की जिम्मेदारी लेती है और कहती है कि उनका मकसद था सज्जन कुमार को मारना, कांग्रेस पॉलिटिशियन जिनको पिछले ही महीने इंडियन कोर्ट ने कहा कि उनका एक बहुत बड़ा हाथ था एंटी सिख राइट्स में लोगों को उकसाने का। फिर नवंबर 2014 में इंडिया ने एक इंटरपोल नोटिस जारी किया हरदीप के खिलाफ, जहां उसको खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बुलाया गया। पर 2016 में और सीरियस चार्जेस लगने वाले थे हरदीप पर। मई 2016 में पंजाब के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने एक आदमी को पकड़ा। नवाज शहर के पास के गांव से बब्बर खालसा का आतंकी शिकंजे में आया है। उसका नाम था मनदीप सिंह और वो रहने वाला था लुधियाना के चक कलां गांव से। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि वो लगातार 2 लोगों से बात कर रहा था। एक आदमी था गजेंद्र सिंह, जो पाकिस्तान में बसे टेरर आउटफिट दल खालसा इंटरनेशनल का चीफ था। गजेंद्र सिंह वही मास्टरमाइंड है जिसने 1981 में श्रीनगर दिल्ली की इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट को हाईजैक किया था। All sorts of people shouting and later on we heard the shots being fired also. और दूसरा आदमी जिससे मनदीप बात कर रहा था हरदीप। मनदीप को पकड़ने के बाद पंजाब के ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट बनाई
जहां उन्होंने कहा कि हरदीप, मनदीप और 3 और नौजवानों को आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा था कनाडा में। वो उनको मिशन शहर के पास एक शूटिंग रेंज में लेकर जाता और हर दिन 4 घंटे शूटिंग की प्रैक्टिस करा था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनदीप और हरदीप के पासपोर्ट और उनकी फोटोज भी अटैच करी, जहां वो पाकिस्तान में AK-47 पकड़े हुए थे। पंजाब पुलिस ने फिर इंडियन और कनेडियन सरकारों को बताया कि हरदीप ने एक टेररिस्ट कैंप सेटअप किया मिशन शहर में और उसने मनदीप को इंडिया भेजा पुलिस ऑफिसर्स और शिवसेना के पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने के लिए। हरदीप के खिलाफ फिर 2016 में एक सेकंड इंटरपोल नोटिस आया। The media outlet from India claiming Hardeep Nijjar, who's wanted on Interpol for terrorism charges, is in the mission area. कनेडियन सरकार ने कोई कमेंट नहीं किया, पर हरदीप के मेयर ने कहा कि ये एलिगेशंस क्रेडिबल नहीं है। The report not credible. Not credible? You have an entire country telling you all this information. Apparently they know so much about this terrorist organization. They know people, like all the people behind it and their names and everything, and you're saying it's not credible? Credible, says mission's mayor. कुछ दिन बाद फिर हरदीप ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को एक लेटर लिखा, जहां उसने कहा कि वो कभी किसी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि वो एक ह्यूमन राइट्स कैंपेन चला रहा है। उसने कहा कि 2013 में वो जिनीवा गया था इन राइट्स के लिए और 2014 में वो UN हेडक्वार्टर्स गया था पंजाब की इंडिपेंडेंस की एक रेफरेंडम की मांग के लिए। 2018 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि वो हरदीप पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं RSS लीडर्स के मर्डर के लिए जो पंजाब में हुए थे, और उसके खिलाफ उन्होंने 2 FIR भी दर्ज करी। अब आपको लगेगा कि हरदीप के पीछे बस सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ी हुई थी, पर ऐसा नहीं है। फरवरी 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। उस विजिट में वो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले और मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 5 लोगों की लिस्ट दी, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। उन 5 में से एक का नाम था हरदीप सिंह निज्जर। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हरदीप को ऑफिशियली एक टेररिस्ट डेजिग्नेट किया। जनवरी 2021 में एक हिंदू पंडित कमलदीप शर्मा पर एक जानलेवा हमला हुआ और NIA ने कहा कि इसके पीछे भी हरदीप का हाथ था। 2022 में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा इस केस के लिए और कहा कि ये दोनों हरदीप के ऑर्डर्स पर नाच रहे थे, जिसके बाद NIA ने 10 लाख का अवार्ड जारी किया हरदीप के खिलाफ। NIA declares a cash reward of 10 lakh rupees on Hardeep Nijjar, accused of killing a Hindu priest in Punjab. पर हरदीप कहता रहा कि वो इनोसेंट है और बस पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 2022 में पंजाब पुलिस ने हरदीप को एक्स्ट्राडाइट यानी कि कनाडा से इंडिया लाने की कोशिश भी करी। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, पर इसका कुछ हुआ नहीं। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि कनेडियन सरकार एंटी इंडिया एक्टिविटीज के बारे में जानती है, पर कई एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर Canada was aware of anti-India activities of Palestine groups, but sitting on extradition requests. This was September 12th, 2023. So, I don't understand why Canada wasn't doing more about this. I'm assuming that he'll say it. We're only halfway through this video, right? Maybe. We'll see. वो एक्ट नहीं कर रही, पर 18 जून 2023 को सिचुएशन बहुत बदल गई। इस शाम को रॉयल कनेडियन पुलिस ने कहा कि उनको एक गुरुद्वारे के बाहर शूटिंग की रिपोर्ट मिली है। जब वो उधर पहुंचे तो उनको हरदीप की बॉडी मिली गन शॉट्स के साथ। पुलिस ने कहा कि हरदीप अपने गुरुद्वारे से बाहर जा ही रहा था जब उसको 2 लोगों ने मार गिराया, जिसके बाद वो आदमी इस तरफ भाग गए। हरदीप की हत्या के पीछे 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जो जस्टिन ट्रूडो ने दी। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. So he was ready to the Canadian government was like, okay, yeah, sure, whatever, get this out of our face, when they were given evidence and told that this guy's an extremist terrorist. But as soon as he's dead, he's like, oh yeah, Canada, you're in the wrong Canada. It's dead. It was 100% Canada. You're Canada, or excuse me, it was 100% India. You're in the wrong India. Basically, is what he said.
I mean, it's got to go deeper, right? It's got to go deeper. Many people talk. कई लोग इस थ्योरी के बारे में बात करें क्योंकि 45 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। परमजीत सिंह पनिवार को मारा जाता है लाहौर में, जो चीफ था खालिस्तान कमांडो फोर्स का। फिर करीब 3 महीने पहले बर्मिंघम में अवतार सिंह खांडा की मौत होती है। उसके सपोर्टर्स कहते हैं कि उसको जहर दिया गया था, पर दूसरी रिपोर्ट्स की माने तो उसको कैंसर था। इन हत्याओं के बाद हरदीप सिंह निज्जर ने खुद कहा कि वो एक हिट लिस्ट पर था। पिछले दिन केंद्र ने सरकार ने ना पाया 9 जणिਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ हरदीप सिंह ਦਾ भी नाम है। इस हत्या के बाद कनेडियन पुलिस ने ये तो कहा कि ये इंसिडेंट टारगेटेड था, पर उसके बाद डिटेल्स नहीं दी। कई अफवाहें जरूर चल रही थी इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, पर कनेडियन पुलिस ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन की वेट करनी चाहिए। ये चेंज हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दी कनेडियन पार्लियामेंट में। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. पर उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया पब्लिकली। दूसरी थ्योरी है कि हरदीप He didn't give any evidence. He accused India. Hold on. Let me of our sovereignty. पर उन्होंने कोई एविडेंस But he didn't give any evidence publicly. He didn't give any evidence publicly. But he still accused India of assassinating a Canadian citizen. I mean, I understand, like, Trudeau's got a lot of controversies, man. Like, he's got a lot of controversies. But, like, if you're going to make a statement like that, directly accusing another nation of assassination of a citizen, you gotta put forth evidence, right? Like, you can't just go around accusing people of doing this and that without evidence. पब्लिकली। दूसरी थ्योरी है कि हरदीप को एक खालिस्तानी मेंबर ने ही मारा है। इस थ्योरी की बात करी कनेडियन जर्नलिस्ट टेरी गैल्विन ने, जिन्होंने बताया कि कुछ समय से मोदी सरकार बैक चैनल कॉन्वर्सेशंस कर रही थी खालिस्तानीज के साथ। अब आप में से कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि मोदी सरकार खालिस्तानियों के साथ बात कर रही थी, पर बैक चैनल टॉक्स इतनी सरप्राइजिंग नहीं है फॉरेन अफेयर्स की दुनिया में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी बैक चैनल टॉक्स चलती रहती है और ये ओपन सीक्रेट है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कई न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इन टॉक्स को मीडिएट कर रहे थे ब्रिटिश सिख एक्टिविस्ट जसदेव सिंह राय। गैल्विन ने कहा कि इंडियन सरकार ने ऑफर किया। Why are there so many Sikh activists all over the world? What is going on with that? What is going on with all these Sikh activists literally everywhere? कुछ लोगों को कि वो उनका नाम टेरर ब्लैकलिस्ट से हटाएगी और इनको वापस इंडियन वीजा भी देगी अगर वो अपना वायलेंस छोड़ देंगे। पर सभी खालिस्तानी मेंबर्स इन बैक चैनल टॉक्स को अप्रूव नहीं करते थे। इन टॉक्स को सपोर्ट कर रहा था रिपुदमन सिंह मलिक, जो एयर इंडिया के 1985 ब्लास्ट में एक अक्यूज था। मलिक ने कई बार मोदी सरकार की प्रशंसा भी करी, पर दूसरी साइड में था हरदीप, जो ये टॉक्स नहीं चाहता था। जुलाई 2022 को मलिक की मौत हो जाती है। कनाडा में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये कदम हरदीप के कैंप का है। और गैंग वायलेंस कोई अनोखी चीज नहीं है कनाडा में। एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसने एक कनेडियन बेस्ड गैंगस्टर सुखदूल सिंह को मार गिराया। What was this? Go back for a second. Oh, I can't read that. Never mind. I was going to read this, but I don't know what any of that says. Okay. So he's a Canadian-based gangster saying he killed another. Okay. He's a Indian descent Canadian gangster, Lawrence Bisnoy, saying he killed another Indian descent Canadian gangster, Subdul Singh. Okay. लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसने एक कनेडियन बेस्ड गैंगस्टर सुखदूल सिंह को मार गिराया। तो क्या मलिक के कैंप ने हरदीप के खिलाफ बदला लिया? इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं, ये अभी थ्योरीज है। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडिया हरदीप को मार भी सकता है कनाडा में? सिंपल आंसर है हाँ, और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेशन हॉर्नेट, इस ऑपरेशन का आप में से कई लोगों ने नाम सुना नहीं होगा। इस ऑपरेशन का मकसद था अब्दुल खान को मारना। जून 1987 में अब्दुल खान लाहौर में अपने घर में घुस ही रहा था कि 2 लोग आए मोटरसाइकिल पर और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब्दुल खान एक पाकिस्तानी नेशनल था जो लंदन में रह रहा था और इसकी हत्या की प्लानिंग कई महीनों तक चली,
ये दावा है जर्नलिस्ट यतीश यादव का, जिन्होंने रॉ के बारे में एक हिस्ट्री लिखी है। रॉ मानती थी कि अब्दुल खान कई टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है यूरोप में, पर उन्होंने उसको यूरोप में टारगेट नहीं किया। रॉ ने वेट किया कि अब्दुल खान पाकिस्तान वापस पहुंचे। वॉल्टर लैडविक, जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि रॉ वेस्टर्न देशों में अपने ऑपरेशंस नहीं करना चाहती थी, पर अब सिचुएशन अलग है। अविनाश पल्लीवाल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाते हैं और एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिन्होंने अपनी किताब भी लिखी है अफगानिस्तान पर, वो कहते हैं कि इंडिया के पास कैपेबिलिटीज है हरदीप जैसा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए। उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी Of course, they could have the capabilities of doing that. I would assume that most countries have the capabilities of doing that in any other country, right? I mean, yeah, I mean. पब्लिश किया ये दिखाने के लिए कि इंडियन सरकार ने कई बार अपने इतिहास में दूसरे देशों के रिबेल्स को सपोर्ट किया है। I mean, the US does that all the time, right? Right? Like in the Middle East and other countries. अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इंडिया ने ऐसे ऑपरेशंस बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और श्रीलंका में करे हुए हैं। ये भी एक ओपन सीक्रेट है और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। Another video I need to कहते watch. हैं कि जिस तरह ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, मानो कि जिसने भी ये किया वो अपने सिग्नेचर इतना छुपाना नहीं चाहता था। तो अगर इंडिया ने ये किया तो वो कनाडा को एक क्लियर सिग्नल देना चाहते थे कि उन्होंने ये क्यों किया। ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, ये आप खुद इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुंह से सुन सकते हो। अब करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो कुछ बताएंगे नहीं, ये सारी खबरें हमें मिलती है फॉर्मर ऑफिशियल्स से। जैसे 2009 में इंडिया के फॉर्मर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सतीश चंद्रा ने कहा था कि कई बार हम चुप रहते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे देश के साथ जो भी हो रहा होता है। India's problem is that we have never imposed a price on any nation for actions taken against us, former Deputy National Security Advisor Satish Chandar said back in September. We keep silent and we accept whatever comes our way. Chandar is echoing a feeling that is widespread among the Indian elite and even general public. Many Indians believe that the country's external enemies, rivals, and friends alike perceive India to be a pushover, or to quote Chandra again, a soft state. In addition, and even more to the point, many Indians themselves hold the same perception. In 1960 or even as late as 1990, Chandra's assessment of India's international image might have been pretty accurate, albeit not to the part about Indians keeping silent. Up until the end of the Cold War, many foreign policy elites in Washington, D.C. and elsewhere held the negative stereotype of India as a soft state. Soft state, huh? Weird. जिस वजह से हम एक सॉफ्ट स्टेट बुलाए जाते हैं और वो कहते हैं ये बदलना बहुत जरूरी है। अगर इंडियन सरकार ने ये किया भी तो उन्होंने किया क्यों? सिंपल आंसर है कि इंडियन सरकार कई समय से फ्रस्ट्रेट हो गई थी कनेडियन सरकार के रिस्पॉन्स से। जब मैंने आपको हरदीप की कहानी बताई तो आपको समझ आ गया होगा कि 2 इंटरपोल नोटिस जारी करे, एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट भेजी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बात करी, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने बात करी, पर इन सभी चीजों का रिस्पॉन्स नहीं आया कनेडियन सरकार से और कुछ महीनों से ये टेंशन बढ़ी रही थी। जब 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस हो रही थी इंडिया के वैनकूवर कॉन्सुलेट में, तो कॉन्सुलेट के बाहर कई प्रोटेस्टर्स आए और उन्होंने इंडिया का फ्लैग भी जलाया। It is just weird that they're doing this in India. It's okay. Or they're doing this in Canada. Oh geez. Okay. ये फ्रस्ट्रेशन इंडिया की बस कनाडा से नहीं है। मार्च 2023 में इंडियन सरकार ने डिसाइड किया कि वो बैरिकेड्स हटा रही हैं ब्रिटिश हाई कमीशन और यूके के एम्बेसडर के घर से दिल्ली में। After the Indian embassy was attacked, India now taking action. Barricades have been removed from outside the British High Commission. क्योंकि कई खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने इंडिया का फ्लैग निकाल दिया था इंडियन हाई कमीशन से लंदन में, पर ज्यादातर इंडियन सरकार की फ्रस्ट्रेशन कनाडा की तरफ ही है। और ये अभी की बात नहीं है, ये सिलसिला स्टार्ट हुआ करीब 40 साल पहले जब एयर इंडिया 182 को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था 1985 में। पर 7 साल बाद अक्टूबर 1992
सुबह के 5:30 बजे पंजाब के गांव कांगरायण में 6 आदमी 2 मारुति गाड़ी में आते हैं। दोनों गाड़ियों की फेक लाइसेंस प्लेट्स है और वो गाड़ियों को कनाल के पास रोक देते हैं। उधर पंजाब पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है। उन 2 गाड़ियों में मिलते हैं रॉकेट लॉन्चर, AK-47, ग्रेनेड्स और कई हथियार। पंजाब पुलिस फायर करती है और 6 आदमियों को मार गिराती है। उन 6 में से 2 लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स मिलते हैं जिनके लिंक पाकिस्तान के ISI से होते हैं। मैं आपको ये 1992 की कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उन 6 में से एक आदमी था तलविंदर सिंह परमार, एक कनेडियन सिटीजन जो जिम्मेदार था 1985 एयर इंडिया ब्लास्ट के लिए, और लीडर था वो बाबा खालसा इंटरनेशनल का, जिसके बारे में हमने पहले बात भी करी थी। इंडियन Why are there so many terrorists that are Canadian citizens? What's going on, man? सरकार ने तलविंदर सिंह को एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। इनफैक्ट 1982 में एयर इंडिया ब्लास्ट के 3 साल पहले पंजाब पुलिस ने एक एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी थी कनाडा को, क्योंकि तलविंदर पर आरोप था कि उसने 2 पंजाब पुलिस ऑफिसर्स को मारा है। So even back then, India was sending extradition requests to known terrorists, and okay. Oh my goodness, even back then, Prime Minister Pierre Trudeau, Justin Trudeau's father, of course, Trudeau. Okay. पर इस एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट का कुछ हुआ नहीं। अगर आपको लगता है कि बस इंडियन सरकार मानती है कि कनाडा टेररिज्म में ढीली है, तो आप गलत हो। कनेडियंस खुद ये मानते हैं। 1985 का एयर इंडिया ब्लास्ट कनाडा का सबसे बड़ा मास मर्डर था, जहाँ 250 से ज्यादा कनेडियन सिटीजन्स मारे गए थे। Bombing of Air India Flight 182 that exploded off the Irish. Yeah, like he said, what exactly is the citizen perspective, the Canadian citizen's perspective on all this? Like, are they just? Post killing all 329 people on board. 280 of them Canadian. पर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे टेररिस्ट अटैक की किस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई थी। 2010 में 25 साल बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट को पढ़कर एक कनेडियन जर्नलिस्ट इतना चौंक गया कि उसने अपनी हेडलाइन लिखी, "You wouldn't want to read this." इस रिपोर्ट में लिखा था कि कनेडियन सीक्रेट सर्विस ने टेलीफोन कॉल्स की टेप्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था जो टेररिस्ट के बीच थे। 2005 में एक जज ने इसको अनएक्सेप्टेबल बुलाया। एक दूसरी कनेडियन रिपोर्ट ने कहा कि इस केस के ट्रायल को 20 साल लगे और $130 मिलियन लगे, और उसके बावजूद सरकार किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाई। The Canadian Secret Service destroyed evidence in relation to it. Why Canadian anti-terrorism laws are... Hold on, let me go back. What is this? After charges against Parmar were dropped in 1985, the next embarrassment from the investigation came with the news that Canadian Secret Services destroyed tapes of telephone calls made by oh gosh, that's a tongue twister. 6 suspected of involvement in Air Canada case. Or Air India case. Dude, my dyslexia is like through the roof right now. टेररिस्ट के बीच थे। 2005 The judge in the 2005 trial described this as unacceptable negligence, but it was regarded as far more serious than the members of parliament calling it for inquiry. में एक जज ने इसको अनएक्सेप्टेबल बुलाया। एक दूसरी While Canadian anti-terrorism laws are attacked by critics as being too harsh, it is clear from the outcome of the Air India bombing trial in March 2005 that the Canadian justice system is not up to task with dealing with terrorists. After an investigation and trial that cost an estimated $130 million and took almost 20 years to complete, the government was still unable to get a conviction against the 2 accused. Oh my God. How have I never heard of this before? In the course of the proceedings, witnesses of the prosecution were threatened, and one key witness who was prepared to testify that one of the accused had told him he had been involved in the bombing was murdered. At the trial, the dead man's sworn deposition linking one of the accused to the bombing was disallowed because he was... Wait. In the course of the proceedings, witnesses for the prosecution were threatened, and one key witness who was prepared to testify that one of the accused had told him he had been involved in the bombing was murdered.
One of the witnesses was even murdered, and they disallowed his testimony. Whoa, my God, okay. कनेडियन रिपोर्ट ने कहा कि इस केस के ट्रायल को 20 साल लगे और 130 मिलियन डॉलर लगे और उसके बावजूद सरकार किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाई। 2000 में एक फॉर्मर सीक्रेट सर्विस ऑफिसर ने एक न्यूज़पेपर को बताया कि उसने 150 घंटे के टेप्स डिस्ट्रॉय कर दिए क्योंकि उसको डर 150 hours था। He had destroyed the 150 hours of tapes because he feared the identity of informants would be revealed. Oh my God. What? कि इन्फॉर्मेंट्स की आइडेंटिटी पता चल जाएगी लोगों को। आप अभी चौकन्न हो गए होंगे, पर ये सिचुएशन और बिगड़ने I'm incredibly shocked. वाली है। पीड़ित परिवारों के दबाव की वजह से 25 साल बाद फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, जिसकी हत्या कर दी थी पंजाब पुलिस ने। पर कनेडियन मिनिस्टर जगमीत सिंह ने लंबे समय तक ये एक्सेप्ट नहीं किया। वो बल्कि मानते रहे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट एक इंडियन सरकार की ही कॉन्स्पिरेसी थी। 2018 में ही उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि तलविंदर सिंह परमार ने ही ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। याद रहे, ये वो बॉम्ब ब्लास्ट है जिसमें 250 से ज्यादा कनेडियन सिटीजन्स मारे गए। 2017 में जो अकेला आदमी इस केस में कन्विक्ट हुआ था, जिसने बॉम्ब्स बनाए थे और लगेज में डाले थे, उसको भी जेल से राहत मिल गई। कहानी अभी Wait. In 2017, the only person convicted in the case who made the bombs जिसने बॉम्ब्स बनाए थे और लगेज में डाले थे, and put them in the luggage was released from jail. He was released from jail? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2018 में कनेडियन सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, पब्लिक रिपोर्ट ऑन द टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा, और इस रिपोर्ट में खालिस्तान का शब्द था। पर कई कनेडियन खालिस्तानीज इस चीज का विरोध करने लग गए और बैसाखी से पहले खालिस्तान शब्द ही हटा दिया। What? Okay, there seemed to be a thaw in the relations when the Canadian government released an annual public report of terrorist threats to Canada in December 2018, mentioning Sikh extremism in Palestine for the first time. The report noted that it's cut off. So however, a year later, Canada revised the report just a day before, removing all mentions of Palestine and Sikh extremisms. What? टू कनाडा, और इस रिपोर्ट में खालिस्तान का शब्द था। पर कई कनेडियन खालिस्तानीज इस चीज का विरोध करने लग गए और बैसाखी से पहले खालिस्तान शब्द ही हटा दिया इस रिपोर्ट से। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए तो उनकी ऑन्ट्राज में था जसपाल अतवल, जो एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है। उसने 1986 में एक इंडियन मिनिस्टर को Wait. Okay, so Justin Trudeau's entourage is this guy who's a convicted criminal, okay, जो एक convicted who criminal was trying to assassinate somebody? He tried to assassinate an Indian minister in 1986? And Trudeau thought it was a good idea to have him in his group when he visited India? 1986 में एक इंडियन मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी कनाडा में। कुछ दिन पहले ही खबर आई कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कई देशों के साथ मीटिंग करी खालिस्तान की थ्रेट के बारे में। The United Kingdom's national security advisor is here in India and will be meeting with Ajit Doval, and India is expected to raise the question of the Khalistan issue with Tim Barrow. ऑस्ट्रेलिया और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने पॉजिटिवली इस बात को लिया, पर कनेडियन एडवाइजर ने इस बात को नकार दिया। Of course they rejected the proposal. They rejected everything. पता चला कि वो सिक्योरिटी पर्सन जो काउंटर टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको कनाडा के वीजा मिलने में भी दिक्कत होती है। Canada regularly denies visas to members of our security forces who have served in Jammu and Kashmir. आप देख सकते हो
कि फ्रस्ट्रेशन ना तो 1-2 महीने की है और ना तो बस मोदी सरकार की है। कई समय से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और कनेडियंस खुद मानते हैं कि उनके देश में टेररिज्म की एक प्रॉब्लम है। 1998 में कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के हेड ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा शायद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कनाडा में ही एक्टिव हैं। Okay, so one of the most comprehensive and frequently quoted public statements regarding the presence of foreign terrorist groups in Canada prior to September 11, 2001 was that made by the head of the Canadian Security Intelligence Services, Ward Elcock, to the Special Committee of the Senate in June 1998. Elcock stated that, with perhaps the singular exception of the United States, there were more international terrorist organizations active in Canada than any other country in the world, and that the counterterrorism branch of the CSIS was investigated over 50 organizations and about 350 individuals. He noted that among the terrorist groups or front groups acting on the behalf that had been or were active in Canada were Hezbollah, of course, and other Shiite Islamic terrorists and organizations, several Sunni Islamic extremist groups, including Hamas, with ties to Egypt, Libya, Algeria, Lebanon, Iran, yada, 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 yada. Okay. शायद सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कनाडा। Also, yes, I understand there's a huge amount of terrorist organizations in the U.S. because we got open borders and everyone just come in to the south from the south, you know. Everyone just allowed everybody in, anyways. में ही एक्टिव है। उन्होंने कहा कि सुन्नी और शिया इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और सिख टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब कनाडा में एक्टिव हैं और Wait, okay, so go back just a second here. The Tamil Tigers, the Kurdistan Workers' Party, and all major Sikh terrorist groups. और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक अनऑफिशियल स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं बनना चाहिए। एक अक्टूबर 2003 की रिपोर्ट ने कहा कि कई टेररिस्ट मानते हैं कि कनाडा में उनको सेफ्टी, पैसे और मटेरियल्स Some terrorist groups as a place to try to seek refuge. Okay, hold on. Canada is viewed by some terrorist groups as a place to try to seek refuge, raise funds, procure material, and or conduct other support activities. Terrorist groups see Canada as an easy place to go and raise their terrorist force, apparently. आसानी से मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट ने कहा कि क्योंकि कनाडा में एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, इस वजह से कई टेररिस्ट के लिए सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल नहीं है और कनाडा के इमिग्रेशन लॉज भी बहुत ही लीनियंट है। जैसे एग्जांपल लीजिए अहमद रसम का, जो अलकायदा का एक मेंबर था अल्जीरिया से। Member of Al-Qaeda? Okay. कनाडा में मॉन्ट्रियल में बेस्ड था। 1994 में अहमद फ्रांस से मॉन्ट्रियल आया एक फेक पासपोर्ट के जरिए। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको रोक दिया ये कहकर कि भाई तुम्हारा पासपोर्ट फेक है। पर रसम ने कनेडियन अथॉरिटी से अपील करी कि उसको पॉलिटिकल असाइलम दी जाए क्योंकि उसका टॉर्चर हुआ था अल्जीरिया में और फेक टेररिज्म के चार्जेस उस पर थोप दिए गए। कनाडा ने ये स्टोरी ना अल्जीरिया से वेरीफाई करवाई और ना इंटरपोल से और उन्होंने उसको एंट्री दे दी। 5 साल बाद वो पकड़ा गया अपनी गाड़ी में और उसकी गाड़ी में थे 40 किलो के एक्सप्लोसिव्स। Ahmed Rassam. Oh my God. What? Man who was caught trying to smuggle a carload of explosives into the U.S. from British Columbia. और ये मैं कोई इक्का दुक्का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। कनाडा की खुद की रिपोर्ट्स ही ऐसी बातें कर रही हैं। सारी रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अब सवाल ये कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों करेंगे? सिक्स की पॉपुलेशन 2% है, भले ही पार्लियामेंट में 5% MP सिक्स हो, तो ये कहना The parliament consists of 5% of Sikhs? Okay. कि वो ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स लिए कर रहे हैं, ये समझना मुश्किल है। कई लोग ये टिप्पणी दे रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी करी है, पर इस पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है तब तक जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि जस्टिन ट्रूडो की क्या पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी। हम ये जरूर जानते हैं कि कनाडा ने फाइव आइज के दूसरे मेंबर्स को इन्फॉर्म किया इसके बारे में। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस का ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके और यूएस के बीच, जहां वो अपने बीच सारी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। जब कनाडा ने इन देशों को इस बारे में बताया तो सभी देशों ने रिपोर्टेडली कनाडा को कहा कि हम पब्लिकली कुछ नहीं We won't say anything publicly. If you have the problem, talk to the Indians at the G20 summit. Okay. बोलेंगे आपको प्रॉब्लम है तो आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बात कर लो G20 समिट के दौरान। अब कुछ लोग ये जरूर ज्ञान देंगे कि बहुत इमोरल है किसी भी देश के लिए एक दूसरे सिटीजन को अटैक करना। इसके काउंटर आर्गुमेंट में लोग उदाहरण देंगे यूएस का, जिन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा। United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. डिप्लोमेसी के I mean,
it's very similar parallels right there. True. एक्सपर्ट से अगर आप इसके बारे में पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे कि मोरालिटी गई तेल लेने, डिप्लोमेसी में जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कुछ ही साल पहले टर्की ने पूरी दुनिया को एविडेंस दिया था कि कैसे सऊदी अरेबिया ने जमाल खशोगी को मार डाला। खशोगी के केस में टर्की ने सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिलीज करी थी, ये प्रूव करने के लिए कि सऊदीज ने ही ये मर्डर किया। यूएस जैसे देशों ने मोहम्मद बिन सलमान से बात करना भी बंद कर दिया और आज सिचुएशन बहुत अलग है। जो बाइडेन अब खुला बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान से। अब जो मैंने एग्जाम्पल उठाया वो बहुत एक्सट्रीम था। जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट थे, हरदीप सिंह निज्जर कोई जर्नलिस्ट नहीं था। पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मोरालिटी की जगह डिप्लोमेसी में बहुत कम है। दूसरे देश मोरालिटी के बेसिस पर चाहे बोलें, पर उनके मन में कैलकुलेशंस उनके इंटरेस्ट के बारे में ही है और वो यही सोचेंगे कि इंडिया के खिलाफ कुछ बोलने से पहले क्या उनका कुछ फायदा होगा या फिर नहीं। अविनाश पल्लीवाल के हिसाब से आने वाले वक्त में दो चीजें हो सकती हैं। अमेरिका एक मीडिएटर बन जाए इंडिया और कनाडा के बीच, दोनों देशों को कुछ दिया जाए जिससे वो अपने सिटीजन्स के सामने अपना मुंह बचा पाए। और दूसरा रास्ता हो सकता है जब कनाडा और अग्रेसिव हो जाए, जिसके रिएक्शन में इंडिया भी अग्रेसिव होता रहे। ऐसा हुआ तो अविनाश कहते हैं कि कनाडा शायद एम्प्लॉय करेगा मीडिया ड्रिप स्ट्रैटेजी। यही स्ट्रैटेजी टर्की ने भी यूज करी थी जमाल खशोगी के केस में और ये टेक्निक ऑलरेडी यूज हो रही है। कनेडियन न्यूज़पेपर ने बताया कि कनाडा के पास इंडियन डिप्लोमेट्स के कम्युनिकेशन का प्रूफ है और ऐसे मीडिया लीक्स हम अगले दिन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर कनाडा के इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व डायरेक्टर ने कहा कि बहुत कम चांसेस है कि कनाडा पूरा एविडेंस सबके सामने रखेगा। वो कहते कि जैसे ही कनाडा सबूत दूसरे देशों को दिखाएगा, तब सारे देशों को पता चल जाएगा कि कनाडा इंटेलिजेंस कलेक्ट कैसे करता है, उसके क्या सीक्रेट मेथड्स हैं और कोई भी देश अपने सीक्रेट मेथड्स दूसरे देश को नहीं बताना चाहेगा। जो बात साफ है वो है कि कनाडा में कई लोग वही गलती कर रहे हैं जो अमृतपाल सिंह ने करी थी। ये ओवर एस्टिमेट करना कि खालिस्तान का मुद्दा कितना जरूरी है पंजाब के लिए। मार्च के महीने में अमृतपाल को जेल भेजा गया। पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा भगोड़ा अमृतपाल 36 दिनों के बाद अमृतसर के मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया, पंजाब में कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। 2021 में प्यू रिसर्च ने दिखाया कि 95% सिख्स अपने देश से प्राउड फील करते हैं। उनको ये नहीं पता कि पंजाब के सिखों के लिए खालिस्तान इतना जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी है एजुकेशन। Yeah, it to me it feels like the whole Palestine thing isn't even like the people like he said the people of Punjab are you know they're Indians, they want to be part of India, like the whole okay. सम्मान और ड्रग फ्री पंजाब। अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो इस मुद्दे पर सब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने भी सरकार के हित में ही बात करी है। हर देश ऊपर ऊपर तो बहुत मोरालिटी की बात करता है, पर याद रखना जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वीडियो के बाद आप इन दोनों वीडियो में से कोई भी देख सकते हो। Wild. ये वीडियो है खालिस्तान और अमृतपाल सिंह के ऊपर और ये वीडियो है इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के दूसरे ऑपरेशंस के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। तो इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हो। मिलेंगे अगली बार। जय हिंद। All right. Wow. I'm going to read the comments now. That is something was going on. I really don't know, man. It feels like I don't know. This is another one that I want to watch. I want to watch this Cogito video on this as well. Wow, it's an hour long. Holy heck. Okay. Okay, let me go down here. As a Sikh born in India, I want to say India is my motherland. All right, awesome. Put English subtitles so Canadian citizens can also watch. Oh, there's English subtitles. I watched it. As an Indo-Canadian born in Punjab, I've been following both Canadian and Indian news. There has to be the most comprehensive video on this topic on the internet today. Very well done. Mohawk. I don't know how to pronounce his name. It's Mohawk Mongol. All Indian YouTubers should put English subtitles as obviously help gain foreign audience. True. I am Sikh living in the West Bengal with my parents. My mother is Bengali and my father is Punjabi. We love our country. I didn't realize that what I saw was 30 plus minutes long video, which isn't a movie. But people like his video. Awesome. I kind of want to see newer comments. Seeing this video, I now know why Britishers were able to rule over India. They didn't need any effort to divide our country because it's already been broken.
Air India was inside job of RAW and Indian diplomats, which have been proved already. Do you have guts to show the truth? Do you have guts to show how many innocent Sikhs were killed in Punjab? I don't support Khalistan, but the truth will always remain truth. If you have the truth, post the link so we could see the truth, or your truth. Why there is could have in every line of your evidence is because it's not evidence. He was giving, he wasn't giving evidence. He was giving, you know, what could be. That's why he said he could have. All right, new comments aren't going to be anything. I am curious to see. I'm going to do this. All right. So Khalistan Trudeau. Yeah, here it is. Okay, so India summoned Canadian. Yeah, this is what I saw earlier. India summons Canadian diplomat over pro-Palestine separatism slogans at Trudeau's speech. What appeared to be the last-minute trip by the Prime Minister to attend... What appeared to be the last-minute trip by the Prime Minister... Are you kidding me? Wow. No. What appeared to be a last-minute trip by the Prime Minister to attend I don't know how to pronounce this, Khalsa Day celebrations in Toronto has landed Canada in new diplomatic tiff with India. The Indian government summoned Canada's Deputy High Commissioner Stuart Wheeler to explain separatist slogans shouted at the parade where Prime Minister Justin Trudeau gave remarks. India's Ministry of External Affairs said to the press release on Monday. The government of India is deeply concerned by the strong protest, and strong protest was conveyed at such disturbing actions be allowed to continue unchecked at the event, the press release read. Illustrates once again the political space that has been given in Canada to separatism, extremism, and violence. Their continued expressions not only impact India-Canadian relations, but also encourage a climate of violence and criminality in Canada at the detriment of its own citizens. Though it was originally not on the Prime Minister's officially released itinerary for Sunday, Trudeau flew to Toronto from Ottawa earlier Sunday afternoon, and his office issued a amended itinerary list in the appearance in the late afternoon. The leader of Canada's two major opposition parties, Pierre Poilievre and I can't even pronounce this, and Jagmeet Singh also spoke at the event. Khalsa Day celebrates both the Sikh New Year and establishment of Sikh community in 1699. Okay. Video of Trudeau's remarks showing spectators shouting Khalistan Zindabad, meaning long live Khalistan, referring to the controversial movement to establish a Sikh homeland within India. After offering greetings in Punjabi, Trudeau said merci as he placed the microphone back onto the podium. I don't want to watch it. Trudeau earned India's ire late last year when he announced in the House of Commons that Canada was actively pursuing credible allegations that India was directly responsible for the death of prominent British Columbia Sikh community leader Hardeep Singh Nijjar. Okay. Interesting. So he went to this event, and it's I don't know. It's baffling. It's really, really baffling. I'm just not sure. I'm just not sure. It's baffling is all. I really don't know. I feel like there's so much more that I need to know. There's so much more. There's just so much more that I need to get in here and try to understand. I don't know. I really, really don't know. I don't know, guys. With that being said, thank you for watching. I hope you all have a good one. Go check this channel out. The link to the video will be in the description down below. I am interested in seeing some more of his other videos as well. Interesting.
Okay. Manipur's burning. I had this one recommended to me. What the heck? Okay. Okay, well, we'll have to see. Why are Indian women fat? That what a title. What a title. Okay. All right. Oh no. All right. You missed the point. One point, the Indian mom doesn't want to waste food, so they eat leftovers for lunch and dinner. I'm going now. All right, guys. Take care. Goodbye. Okay, so as I was rendering the video, I had someone let me know there was an update to the story. Police make arrest and killing of Sikh activist Hardeep Singh Nijjar. Months-long investigation into politically charged killing also probes links to other cases sources. Canadian police have arrested a member of an alleged hit squad investigators believe was tasked by the government of India with killing prominent Sikh activist Hardeep Singh Nijjar in Surrey, BC last June. All right. Sources close to the investigation also told CBC News that police are actively investigating possible links to 3 additional murders in Canada, including the shooting death of an 11-year-old boy, Edmonton. Members of the hit squad are alleged to have played different roles as shooters, drivers, and spotters in the day Nijjar was killed at the Guru Nanak Sikh Gurdwara in Surrey, according to the sources. Sources said investigators identified the alleged hit squad members in Canada some months ago and have been keeping them under tight surveillance. Oh my goodness. I don't know if I'm going to be able to pronounce these. Kamal Preet Singh, Kanra Preet Singh, and Karan Brar face first-degree murder and conspiracy charges in the Nijjar case, according to the documents filed in a Surrey court Friday. The charges have not been tested in court, but they will appear before the judge virtually on Friday. The investigation does not end here, says RCMP officer. All the accused are Indian citizens and have been non-permanent residents of Canada for 3 to 5 years. RCMP officers told reporters at their Friday press conference announcing the charges. Sources told CBC News the men arrived in Canada on temporary visas after 2021, some of them students' visas. None are believed to have pursued education while in Canada. None have obtained permanent residencies. Others tied to this crime could be... So they literally went there to just join the gang. Others tied to this crime could be arrested in the coming days, police said. The investigation does not end here. We are aware that others may have played a role in this homicide, and we remain dedicated to finding and arresting each of these individuals, said Supt Mandeep Mukur, and the officer in charge of the BC RCMP's interrogated homicide investigation team. Assistant Commissioner David Thibault of the RCMP commander of the Pacific region said he wouldn't comment on the alleged links between these men and Indian officials. Interesting. He did say the force is investigating connections to the government of India. Of course, he's attributing to these people to the government of India still, even though, I mean, they've been in Canada for 3 to 5 years. This is like a gang shooting, right? Like that's what this is. But it's still, they're investigating connections to the government of India still. Wild. But Thibault said the force's relationship with Indian police has been rather challenging and difficult. Asked if there are Indian sleeper agents in Canada, Thibault said it's a great question, but he can't say more about it because it's very much at the center of evidence and ongoing investigations. So,
Okay, Federal Public Safety Minister Dominic LeBlanc congratulated the RCMP on the arrest and called Friday's development significant progress in trying to get to the bottom of the circumstances around Najjar's killing. The work doesn't end here. In fact, the work continues, LeBlanc told reporters on Parliament Hill. Interesting. Okay. CBC News learned of the arrest as well as other information, investigation, government, yada, 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 yada. Okay. And this is just the backstory of the video that we just watched. So, wild. Absolutely wild. There's an update as I was recording, so... crazy, dude. Okay, well... They found these people. They were in Canada for 3 to 5 years. Who knows what they were up to? They never went to school. They never had a permanent residence. To me, it just appears that... Oh, what is this? 3 Indian nationals have been arrested and charged first-degree murder of the killing of the prominent Sikh separatist. Police have believed they are part of an alleged squad directed by... Oh my God. Okay. Police believe they are part of an alleged hit squad directed by the Indian government. Do these look like people that would be hitmen for the Indian government, though? Like, really? Do these 3 people look like they would be hitmen for the Indian government? I don't know. To me, from like an outsider's perspective, it feels like this is just like it was like a gang confrontation. Come on, like that's what it feels like to me, right? All right, I guess we'll see what's up, man. I guess we'll see what the police investigate. Well, quick little add-on, addendum to the video that I just recorded. I was the video is like literally rendering right now, so I had stopped the rendering so I could record this. Thank you. Let me pull up your name here. Oh my goodness. I can't pronounce this. How do you pronounce this? Ruhrunaxian. I can never pronounce your name. Anyways, he gave me the heads up that there was an update. So, cool. Glad I got to see the update. Anyways, guys, thank you for watching. Remember to like, subscribe, leave a comment down below. And I'll catch you on the next one, yeah? Take care. Goodbye.